Hey guys, welcome to my channel Career Solution, an institute of education where you can join the pillar of success and get ahead of others. So this is the second part of this chapter, electric field and charge. Already I had uploaded the first part of electric field and charge. It is a chapter of class 12 physics, first chapter of class 12 CBSE, which is electric field and charge. As you all know, we had discussed about what is electricity, introduction of electricity. We had discussed about the matter. Matter has two properties, है ना? What are the properties? Mass and radiation. Okay. There is another force which is greater than gravity. What it is? That is electric charge, है ना? Or we had discussed about the electric charge, types of charges, like charges, unlike charges. As you know, we had discussed about the properties of charges. We had discussed many properties of electric charges, like charges repel each other, unlike charges attract each other, quantization of charge, okay, additivity of charges, conservation of charges, है ना? Charge neither be created nor be destroyed. It can be changed from one form to another form. Additive in nature means sum of all the charge. The algebraic sum of all the charges is called the charge of the isolated system. Quantization of charge Q equals to Ne, where N belongs to number of electrons. One electron is having 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb charge. Okay, so today I am going to solve a few numericals of electric charge on the basis of properties of electric charge. That is the quantization of electric charge Q equals to Ne. There is one numerical for you all. थोड़ा फोकस करेंगे और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इसको बाद में भी प्रैक्टिस कर सकें. A polythene piece rubbed with wool. एक पॉलीथीन पीस है जिसको हम रब किससे रब कर रहे हैं? वुल के साथ रब कर रहे हैं. इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज. इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक पॉलीथीन पीस ऑफ पेपर पे जिसको हम वुल से रब कर रहे हैं तो उसके बाद उसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है. अगर किसी भी सब्सटेंस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन लिया है. तो यहाँ क्या समझ में आया कि पॉलीथीन में नेगेटिव चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन कौन गेन किया? पॉलीथीन. किससे गेन किया? वुल से. तो पॉलीथीन पीस ऑफ पेपर है ना rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. वुल से रब्ड होने के बाद उसमें जो चार्ज है वो कितना है? नेगेटिव चार्ज है. 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. Okay, now question is estimate the number of electron transferred from which to which. आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं. इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना ही तो चार्ज कहलाएगा, है ना? तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और फ्रॉम विच टू विच, कहां से कहां. तो पहला सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो भी मिल गया. फ्रॉम विच टू विच? वुल टू पॉलीथीन. क्लियर है? वुल टू पॉलीथीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन ट्रांसफर्ड. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q इक्वल्स टू Ne. सो इफ Q इक्वल्स टू Ne देन N इज इक्वल्स टू क्या होगा? Q अपॉन E. We have given Q equals to minus 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. So N equals to Q upon E. Now value of Q is minus 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. Why minus 3? Because it is a negative charge. So number of electron is going to the polythene. We are talking about the number of electron present in what? Polythene. So if we are talking about the number of electron present in the polythene, then that is also negative. The charge in that electron is also negative. So minus 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. And as you all know, one electron is having a charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. It is also a negative sign. Now negative sign has been cancelled out from the numerator and denominator. After solving it, you will get N equals to 1.875 into 10 to the power 12 coulomb. So number of electron has been transferred from wool to polythene is equals to 1.875 into 10 to the power 12 coulomb. Now the second part of this question is there a transfer of mass from wool to polythene? अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है. हमने क्लास 11th में बात किया है. कितने नंबर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? हम सब जानते हैं 9 into 10 to the power minus 31 kg. So is there a transfer of mass from wool to polythene? Yes, exactly. There is a transfer of mass from wool to polythene. For finding it, अब देखो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो. जैसे सपोज करो कि मैंने 5 किलो के 5 केजी के 5 पॉलीथीन आपको दिए, तो टोटल मैंने कितना केजी आपको दिया? 5 into 5 25 केजी. सो सिमिलरली N into Ne. What is Ne? Mass of one electron.
What is n? Number of electron. How many number of electron has been transferred? By quantization you found out 1.875 into 10 to the power 12 coulomb. So now after multiplying these two, what is the value of m? You have found out 1.875 into 10 to the power 12. What is the me? Mass of one electron, 9 into 10 to the power minus 31 kg. After solving it, you will get the mass transferred from wood to polythene is 1.687 into 10 to the power minus 18 kg. Now coming to the next question. Here the question is a copper slab of mass 2 gram. एक copper slab है जिसका mass कितना है 2 ग्राम है. Contains 2 into 10 to the power 22 atoms. एक copper slab है. हम सब जानते हैं कोई भी substance atom से मिलकर बना होता है. तो जो copper slab है उसमें total number of atoms कितने हैं 2 into 10 to the power 22 atoms. The charge on the nucleus of each atom. हर एक एटम का न्यूक्लियस होता है. अब उस न्यूक्लियस पे जो चार्ज है, हर एक एटम के न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो कितना है 29 इलेक्ट्रॉन चार्ज. कितने चार्ज है 29 इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर. स्फीयर से यहां मतलब है एटम से. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर टू गिव इट अ चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकूलम. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे ताकि वो जो स्लैब है वो +2 माइक्रोकूलम का चार्ज कंटेन करना लगे. माइक्रोकूलम मिलीकूलम आर द स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज, नथिंग एल्स. माइक्रो मतलब 10 to the power -6 और अगर मिली है तो 10 to the power -3 कूलम. ठीक है. तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर टू गिव इट अ चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकूलम. अब समझना सारा खेल यहीं पे है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ. इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो क्या होता है वो सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. किसी भी कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या हो जाता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है. तो क्वेश्चन कुछ कह नहीं रहा. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड. अगर रिमूव होगा इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव तो होना है. तो पॉजिटिव का चक्कर ही नहीं है कि पॉजिटिव कितना, वो तो पॉजिटिव होना ही है. यहाँ चक्कर ये है कि 2 माइक्रोकूलम होते तक, जैसे देखो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन निकला तो थोड़ा पॉजिटिव चार्ज हुआ, थोड़ा और निकला थोड़ा और चार्ज हुआ. ऐसे करते करते कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दें कि उस स्लैब का जो चार्ज है वो +2 माइक्रोकूलम में कन्वर्ट हो जाए. अगर ये -2 माइक्रोकूलम होता तो क्या होता, फिर इस स्लैब में इलेक्ट्रॉन गेन होता. बट यहाँ रिमूव हो रहा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज अक्वायर हो रहा है. तो अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्लैब. उस स्लैब में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे. एक एटम्स में जो चार्ज है वो कितना है 29 इलेक्ट्रॉन, एक है ना. और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2 into 10 to the power 22. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 29 इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम एंड द नंबर ऑफ एटम इज 2 into 10 to the power 22. So the product of this will get the total number of electron. Now number of electron removed, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए. तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फिर अगेन n equals to q upon e. कितना चार्ज क्रिएट हो रहा है, कितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद +2 माइक्रोकूलम. तो q equals to 2 into 10 to the power -6 कूलम. नाउ एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कंटेन करता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम. इन दोनों का फ्रैक्शन करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया 1.25 into 10 to the power 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिमूव्ड. इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए. पर क्वेश्चन क्या है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड. फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड कैसे पता चलेगा. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हुए हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द क्या स्लैब. तो दोनों का फ्रैक्शन निकाल दीजिए 1.25 into 10 to the power 13 upon 29 into 2 into 10 to the power 22. After solving it you will get 2.16 into 10 to the power -11 number of you can't say number of electron, fraction of electron has been removed from the slab. Now guys, I would like to give you more concept of few things which is also very important, like conductor, insulator. What is conductor? If I ask what is conductor, a substance which carry electron, a substance which carry electron or conduct electron, or through which we can pass the electric current, or through which we can flow the electrons, or through which the charge can flow. That kind of substance is called conductor. Whereas insulator, a substance which cannot possess to conduct the electron, or through which electron cannot pass, है ना. Insulator creates a high resistance to the flow of electron. It makes a passage to break the
flow of electron. That is called insulator. The second name of insulator is dielectric. We are saying it dielectric also. तो कंडक्टर समझ में है जिससे हम करंट पास कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं, या चार्ज फ्लो हो सकता है जिससे करंट पास हो सकता है, वो कंडक्टर कहलाता है. इंसुलेटर थ्रू विच द करंट कैन नॉट पास इज कॉल्ड इंसुलेटर. गुड कंडक्टर के एग्जांपल क्या है? सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. इंसुलेटर के एग्जांपल क्या है? इंसुलेटर के एग्जांपल हो गया माइका, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा. Now a very interesting topic, charging by induction. क्या है charging by induction? समझना. It is the process in which one neutral body is going to be charged when it is come near to in contact with the charged body. Suppose यहाँ पे हमारे पास एक body है जो भी न्यूट्रलाइज्ड है. न्यूट्रलाइज्ड है मतलब इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है. ठीक है, हम इसके क्लोज क्या करके आते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं, इसके क्लोज लेके आते हैं. तो जैसे ही हम इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के क्लोज लाएंगे, क्लोजर लेके आने की कोशिश करेंगे, तो आप क्या फील करोगे कि इसमें इसके तो सारे अभी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है सब इस्टेब्लिश्ड है. तो आप क्या फील करोगे कि इसके जो नेगेटिव आयंस हैं, जो नेगेटिव चार्ज होंगे, वो क्या होंगे? इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे. तुम जानते हो ना कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. तो इसके सारे नेगेटिव आयंस एक एंड में सेपरेट हो जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो दूसरे एंड में सेपरेट हो जाएंगे. इस तरह से बॉडी जो है नेगेटिवली चार्ज्ड बन जाएगा. ऑन द अदर हैंड देखो, अगर आपके पास कोई एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है जो आप न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जाओगे, तो क्या होगा? उसके जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो इसके क्लोज आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज उधर चला जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड द charging by induction, the process in which a neutralized body gets charged when it is come nearer in contact with the charged body. That is called charging by induction. Okay, now a very interesting topic of this chapter, you can say कि chapter has been start from here only, which is Coulomb's law. What is Coulomb's law? बहुत important चीज है, इसको समझना पड़ेगा आपको. What is Coulomb's law? तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? इसके लिए आप यहाँ पे आप देख रहे हैं दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं. मैंने पहले भी आपको बताया कि जो पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर है वो किस पे बेस्ड है? किस पे बेस्ड है आप बताओ? स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस पे बेस्ड है. जहाँ पे स्टेशनरी चार्ज की बात आती है वहां पे क्या आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, इफेक्ट शो करता है. तो यहाँ दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 जो कि पॉइंट चार्जेस हैं, एट रेस्ट है. तो देयर इज अ टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 which are at stationary point and separated by a very small distance r. Q1 and Q2 पे कोई भी चार्ज हो सकता है. either they both are positive, either they both are negative, either they are unlike charges. one is positive and another is negative. अभी जो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा तो मैंने Q1 और Q2 अनलाइक चार्जेस लिए हैं क्योंकि यहाँ पे आपको फोर्स ऑफ क्या दिख रहा है? अट्रैक्शन दिख रहा है. ठीक है, तो अगर दो चार्जेस हैं, दोनों में चार्ज है, दो बॉडी हैं जो कि चार्ज है और बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है. तो आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर दो बॉडी है बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो एक रीजन होता है, उस रीजन में अगर ये दोनों हैं तो क्या करेंगे? या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो एक दूसरे को रिपल करेंगे. ये तो होना ही होना है. ठीक है, तो इफ टू पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस देन देयर विल बी अ फोर्स, देन दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. तो वो फोर्स क्या होगा? The force experienced by two stationary point charges at vacuum. At vacuum क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसको भी कहाँ रखा हूँ? एक फ्री मीडियम में रखा हूँ, फ्री स्पेस पे, मीडियम पे रखा हूँ, है ना, वैक्यूम पे रखा हुआ है, कोई मीडियम नहीं है. ठीक है, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है. तो दो पॉइंट चार्जेस हैं जिनके बीच का बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, दे आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस आर. तो Q1 and Q2, तो either they will experience a force of attraction or either they will experience a force of repulsion. So the force of interaction, or you can say the force of attraction or repulsion between two point charges which are separated by a very small distance r is directly proportional to the product of charges. यहाँ जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, है ना. इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट कर दो, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and force is inversely proportional to the square of the distance between them. Force is inversely proportional to the square of the distance between them. मतलब जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. तो F is directly proportional to Q1 upon Q2, that is equation number 1. F is inversely proportional to R square, that is equation number 2.
Now combine equation 1 and 2, you will write F is proportional to Q1 into Q2 upon R square. If I will remove the proportionality sign over here, तो we have to put what? 11th क्लास में हमने इसमें बहुत बात किया है कि जब भी कभी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, तो क्या आता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. तो F equals to K Q1 Q2 upon R square, जहां where K equals to what? The proportionality constant. Now the value of this proportionality constant in the when we are talking about the electrostatic, so the value of this constant proportionality K is 1 upon 4 pi epsilon naught. इसको हम क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं. तो K equals to 1 upon 4 pi epsilon naught and the value of 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. इसको आपको याद रखना पड़ेगा. हालांकि ये डिराइव भी हो जाता है, अगर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको डिराइव करके दिखा दूंगा आपको. तो K equals to 1 upon 4 pi epsilon naught is the value of K and the value of 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. अब एक सवाल फिर उठता है कि भाई ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, कहां से आ गई ये नया चीज एप्सिलॉन नॉट? तो एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना. फ्री स्पेस में किसी भी चीज को मूव करने के लिए, चार्ज को मूव करने की एक परमिटिविटी होती है. वो परमिटिविटी क्या कहलाती है? एप्सिलॉन नॉट कहलाती है. द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब चार्ज को मूव करने के लिए आप कह सकते हो कि जो एक परमिटिविटी है कि दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं वैक्यूम में, है ना. तो उसके लिए एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो कितना है? 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये इसका उल्टा है. एप्सिलॉन नॉट यहाँ चला जाएगा, के यहाँ चला जाएगा, तो जो यूनिट है वो भी चेंज हो जाएंगे. तो आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ क्या लिखा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. ये इसका यूनिट क्या होगा? कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. And the value of epsilon naught is 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर. बच्चा लोग एक चीज बता दे रहा हूँ, क्लास 12 है. क्लास 12 में मेन चीज जो है ना वो वैल्यू याद रखने का खेल है. हालांकि इतनी बार आप न्यूमेरिकल बनाओगे, इतने क्वेश्चन बनाओगे, इतने चैप्टर में कंटिन्यूटी अभी हमको इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ना है, तो स्लोली आपको याद हो जाएगा. नो नीड टू पैनिक अबाउट इट. स्लोली याद हो ही जाते हैं. बट हाँ, कुछ चीजें हैं यहाँ जो आपको याद रखना पड़ेगा. जैसे आपको के की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, आपको एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो याद रखना पड़ेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, उसका यूनिट क्या है. कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा. और ऑल्दो अगर मैं कहूं तो 12th क्लास 11 से भी इजी है. तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू व्हाट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. अब अगर यहाँ पे मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 to the power minus 12 रख दूं, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है. इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू 9 into 10 to the power 9. अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट द वैल्यू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर व्हिच इज द वैल्यू ऑफ के. अब एक चीज यहाँ मैं और समझाना चाहता हूँ. सपोज करो अगर ये दो पॉइंट चार्जेस जो हैं Q1 और Q2, उन दोनों पे जो चार्ज है वो 1 कूलम का है. दे आर लाइक चार्जेस एंड दे बोथ आर हैविंग द सेम चार्ज 1 कूलम. Q1 एंड Q2 दोनों पे जो चार्जेस हैं 1 कूलम के हैं और दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है? 1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड है. तो अगर मैं इन सारे वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखूं तो K into 1 upon 1 का स्क्वायर, तो टोटल बचेगा क्या? केवल K बचेगा. तो F equals to K हो जाएगा. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सो द फोर्स become 9 into 10 to the power 9 newton when there is a two like charges of 1 coulomb and they are separated by a very small distance r equals to 1 meter. So guys, this is the last topic of today's class. I'm not going to bore you at all. I can understand easily. It would be very hectic to understand more and more concept in one day. So the today's last topic is relative permittivity or dielectric constant. एक ही नाम है, relative permittivity और dielectric constant. क्या होता है ये समझना. पहले तो आप इसको समझो, इसका डेफिनेशन समझो कि क्या है relative permittivity का डेफिनेशन. It is the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space. It is the ratio of permittivity of a medium to the permittivity of free space is called relative permittivity or dielectric constant. अब यहाँ बहुत जबरदस्त चीज आएगा. रेशियो है. अगर रेशियो है तो क्या इसका कोई यूनिट होगा? नहीं. क्या होगा? नो, इसका कोई यूनिट नहीं होगा.
आप जानते हो रेशियो किसको कहते हैं? इट इज द मेथड ऑफ कंपेयरिंग द क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड ऑफ द सेम यूनिट। अगर दोनों का यूनिट सेम है तो रेशियो में है तो यूनिट तो कट जाएगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अगर ये यूनिट लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अगर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो हम इसका डायमेंशन फार्मूला क्या लिख सकते हैं? m0 l0 t0, है ना? तो इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट इज डिनोटेड बाय ER, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम में, है ना? तो देखो दो चार्जेस हमने फिर दो पॉइंट चार्जेस ले लिए, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। पहले हम क्या करते हैं, उन दोनों चार्जेस को एक मीडियम में रखते हैं, किसी एक मीडियम में रखते हैं, तो फिर उस पे फोर्स क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज अ कूलम्ब्स लॉ, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। तो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू आपको बता चुका हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर यहाँ मीडियम की बात कर रहे हैं तो परमिटिविटी की जगह हम एप्सिलॉन नॉट ना लिख के क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन लिखेंगे। F वैक्यूम, अगर वैक्यूम की बात करूं तो 1/K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू यहाँ एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। नाउ इफ आई डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 तो क्या होगा? F वैक्यूम अपॉन F मीडियम, फोर्स between two charges when they are placed in vacuum upon force between two charges when they are placed in a medium। वैल्यू रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन ये। आप क्या देखोगे? 1/4 पाई सब कट जाएगा, Q1 Q2 तो सेम चार्जेस हैं वो भी कट जाएगा, बचेगा क्या? ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही F वैक्यूम अपॉन F मीडियम को हम क्या लिख सकते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ER इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। So this is it for the today's class, student. Thank you so much for liking my videos and giving me so much motivation to make another video for you all. Tomorrow I will give you the question related to the properties of charges, as well as I will give you some question related to the Coulomb's law also. For knowing more concept of electric field and charges and knowing more concept of the physics, please stay tuned in my channel, like, subscribe my channel, and don't forget to click the bell icon.